افطار کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے. روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی, ایک وہ وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کھانے میں اور کسی بھی وقت کھانے میں اتنی خوشی ہوتی ہو جتنی افطار کے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر ہی خوشی ہو جاتی. تو اس وقت یہ یاد کریں, آج آپ کا ہوم ورک ہے یہ کہ افطار کے وقت آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو جس طرح اس وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ اس وقت بھی مجھے اسی طرح کی خوشی ہو, میرے اندر وہ ڈر نہ ہو, خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. پھر یہ کہ افطار جلد کرنا مسنون ہے, افطار جلد کر لینا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں, کچن سمیٹ رہے ہوتے ہیں, اچھا میں آ رہی ہوں, اور اس میں 2-3 منٹ بعض اوقات لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں. تو ڈیلے نہیں کرنی چاہیے, بس ادھر اعلان ہو اور دوسری طرف افطار ہو جائے, چاہے پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. بہترین تو یہی ہے کہ کھجور سے کھولا جائے روزہ, لیکن اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کا گھونٹ, دودھ کا گھونٹ, جو بھی چیز ہو اس سے کھول لیا جائے. سحری اور افطاری دونوں اوقات میں انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کر سکتا ہے, اور ان دعاؤں میں خصوصاً اپنی بخشش کی دعا, کیونکہ اگر بخشش ہو گئی تو سمجھیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ہمارا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر دیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. تو روزے کا اصل مقصود پھر کیا ہے؟ تقویٰ. یعنی اس ساری ایکٹیویٹی سے جو بھی رمضان میں ہوگی, جن جن احکامات پر عمل کریں گے, ہم جو کچھ کریں گے, جو کچھ چھوڑیں گے, ان سب کا جو نچوڑ ہے یا خلاصہ ہے, یہ جو چیز ہم کو لینا ہے وہ تقویٰ ہے. تو یہ تو ہمارا گول ہو گیا, ایم ہو گیا ہمارا. اس کے لیے کرنے کے کام کیا کیا ہے؟ نمبر 1 تو روزہ رکھنا ہے, کیونکہ پہلی آیت میں کہا گیا کتب علیکم الصیام, اور پھر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور پھر تاکیدی حکم فَلْيَصُمْهُ. ٹھیک ہے, نمبر 1 روزہ رکھنا, جس کی دلیل کیا کیا ہے اس کو بے شک اپنی کتاب پہ انڈر لائن کر لیں یا جیسے بھی آپ لکھنا چاہیں. تو کتب علیکم الصیام وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور فَلْيَصُمْهُ. اس کے بعد آیت 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. روزہ رکھنے کے بعد دوسرا عمل قرآن کے ساتھ تعلق. اگرچہ ساری زندگی مومن کا تعلق رہتا ہے, لیکن خاص طور پر ان آیات کے ریفرنس سے قرآن سے تعلق اور رمضان کے حوالے سے. یہاں پر قرآن پاک کے اتارنے کا اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ہے کیا؟ ہدی للناس. کیا ہے ہدی للناس؟ کیا ہے, کیا معنی ہے ہدی للناس؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. للناس تو وہ کون ہے؟ للناس وہ کہاں رہتے ہیں جن کے لیے یہ ہدایت ہے؟ وہ ہم خود بھی ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہیں. تو قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق کہ اس کی رہنمائی سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے آس پاس بھی اٹھائیں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, اور پھر یہ رہنمائی ایسی ہو کہ قرآن پاک کے اندر تلاش کیا کرنا ہے. نمبر 1 وہ نشانیاں, وہ اہم چیزیں, یعنی ساری کتاب رہنمائی ہے, لیکن پھر بینات. بینہ کیا ہوتا ہے؟ نشانی, روشن نشانی, یعنی وہ آیات اور وہ احکامات خاص طور پر جس سے ہمیں ایک رہنمائی نصیب ہو. اور کس چیز کے بارے میں خصوصی توجہ؟ والفرقان, فرقان پر, حق و باطل, اچھے برے, حلال حرام, جائز ناجائز میں تمیز. اس کو خود اپنے پہ بھی دوبارہ واضح کریں اور دوسرے لوگوں پر بھی. اب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس مہینے میں خود بھی سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں کو بھی. تو کرنے کے کاموں کی لسٹ میں یعنی تقویٰ جو ہے یہ گول ہے, اس کو تو بالکل سینٹر میں رکھیں یا سب سے اوپر رکھیں. اور کرنے کے کام میں نمبر 1 روزہ رکھنا, اور پھر قرآن پاک سے تعلق, پھر یہ کہ اس کے نیچے کیسا تعلق, ہدی للناس لکھ لیں, اور پھر اس کے بعد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ, تاکہ گنتی پوری کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خاص طور پر روزے کے بارے میں جو احکامات ہیں یعنی فقہی احکامات ہیں ان کو بھی دوبارہ سے دہرانا ہے سب. خصوصاً آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ پہلے نماز نہیں بھی پڑھتے تھے, روزہ ضرور رکھتے تھے, لیکن اب روزہ نہ رکھنے والے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کئی طرح کے جواز پیش کرتے ہیں. اور خصوصاً خواتین میں یہ مشکل ہے کہ روزہ رکھتے تو ہیں لیکن اگر اس میں سے کچھ چھٹ جاتے ہیں تو ان کی گنتی پوری کرنے میں سستی اور کوتاہی ہوتی, اس کی طرف توجہ نہیں. بہت سی خواتین پوچھتی ہیں نا کہ یہ ہم نے خود جان کے تو نہیں چھوڑے روزے, جو شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن کا حکم وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّۃَ یہ بہت ضروری ہے. یعنی روزہ ایک ایسا فرض ہے جس کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے. اگر رمضان میں نہیں تو بعد میں,
تو मरीज के अहकाम क्या है, मुसाफिर के अहकाम क्या है, और उसके अलावा दूसरे लोग जो किसी वजह से रोजा छोड़े, मसलन खवातीन के अहकाम खास तौर पर क्या है, उसके बारे में इल्म होना और दूसरों को भी उसके बारे में बताना। अगला हुक्म यानी अब करने के कामों में क्या आ गया, जो छोटे छोटे काम है मजीद, तुकमिलुल इद्दा। नंबर 2, वली तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान करना। किस पर? अल्लाह की बड़ाई बयान करना किस पर, किस बात पर? आगे पढ़े ना आयत को, देखे ना। अला मा हदाकुम, ये कौन है? अला मा हदाकुम, ये कौन है? सब लोग बतौर आम हैं और आप बतौर खास हैं। इन सारे मुसलमान बतौर आम किस तरह है कि सबको अल्लाह ताला ने दीन की नेमत दी, जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है, ठीक, लेकिन जिन्हें दीन समझने की तौफीक दी वो बतौर खास हो गए। और क्या करना है? वलअल्लकुम तशकुरून, शुक्र अदा करना है। अब इसके तरीके क्या होंगे? तुकमिलुल इद्दा तो पता चल गया, तुकब्बिरुल्लाह और तशकुरून कैसे होगा, इसका तरीका क्या होगा, ये भी बाद में डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। यानी अमली तरीके और प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो बाद में अभी आती हैं। अगला काम क्या करना है? वो इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी, खास तौर पर दुआओं का एहतमाम रमजान में। कबूलियत के औकात आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे सहरी के वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, रोजे की हालत में आप हालत इबादत में हैं, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, और इफ्तार के वक्त खास तौर पर, फिर रात को तरावीह में कुरान सुनने के बाद, तो ये सारे मौके जो हैं कबूलियत दुआ के हैं। इसलिए दुआओं का खास तौर पर एहतमाम, यानी आम दिनों में भी जो दुआएं मांगते हैं तो इसमें जरा सी और कसरत या हस्बे इस्तिताअत कसरत, मौके से फायदा उठाना, यानी अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुलने वाले हैं, तो जितना चाहे उससे मांग लें, जो चाहे उससे मांगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? वलियस्तजीबू ली, ये भी तो मेरी बात माना करें, वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फिर उसके बाद आप देखिए मजीद कुछ फिक़ही अहकाम है। अब देखिए कि गोल क्या था? तकवा। अच्छा, जब हम तकवा की बात करते हैं ना तो हम समझते हैं शायद दुनिया छोड़ देना तकवा है, शोहर को छोड़ देना, उससे कोई ताल्लुक न रखना और दुनिया की किसी चीज से रगबत न रखना, शायद ये तकवा है। यहाँ बताया गया कि नहीं, जायज हुदूद के अंदर इवन रमजान में भी इंसानों के हुकूक अदा करना वो तकवा है। हमारा दीन एक मोतदिल दीन है, क्योंकि शुरू में लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद, और इसी वजह से ना वो शक की बात जो अभी की कि कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे, यानी यकीनी बात नहीं पता थी इसलिए डामाडोल थे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म वाज़ेह करके तुम्हारी रहनुमाई फरमा दी। किसी भी एक चीज की तरफ झुकाव का हो जाना वो आसान होता है कि इंसान एक रास्ता इख्तियार कर ले या दूसरा कर ले, और दोनों को साथ लेके चलना मुश्किल होता है आमतौर पर, तो उस चीज की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई। फिर इसी तरह आपने बुखारी में पढ़ा होगा कि सौम विसाल से मना किया गया कि रोजे के साथ जोड़ के रोजा रखना, इसीलिए कुलू वशरबू, खाओ पियो, यानी इफ्तार के बाद खाना, सहरी के वक्त खाना, और सहरी के वक्त खाने का जो हुक्म है उसके बारे में आप कुछ अहादीस आपको मालूम होंगी कि उस वक्त खाना जो है वो बायसे बरकत है, बायसे रहमत है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाएगी। हाँ, एक दूध का घूंट क्यों ना हो, लेकिन सहरी खाना जो है वो जरूरी है। तो और रमजान में करने का काम फिर क्या हुआ? अज़वाजी मामलात और खाने पीने के मामलात में रहनुमाई, यानी अल्लाह ताला की रहनुमाई। और खाने पीने के मामलात में मजीद थोड़ी सी बात ये कि कैसी खुराक, यानी दुनिया के एतबार से भी जरा सोच लें कि अपना वक्त बचाने के लिए क्या पकाएंगे, और इबादतों में यकसुई के लिए क्या पकाएंगे, ना उसमें बिल्कुल ही ऐसी खुराक हो कि जिससे इतनी कमजोरी लायक हो जाए कि रोजा ही ना रख सके, और आप कहें कि मैं तो तकवा के हुसूल के लिए फाका कुशी कर रही हूँ। तो रोजा रखना फाका कुशी करने का नाम नहीं है। और इसी तरह ना इतना ज्यादा खाने पकाने की तरफ तवज्जो हो कि तरावी न पढ़ी जा सके, या ये है कि सुबह नमाज के बाद कुरान की तरफ तवज्जो न दी जा सके, तो इस चीज की तरफ भी, फूड मैनेजमेंट जो है उस पर भी थोड़ी सी बात। और उसके औकात फिर बता दिए गए कि कब तक ये, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल असद मिनल फज्र। अगला काम क्या करने का है? क़यामुल लैल, रात की तरावीह की नमाज जो है। फिर मजीद एतकाफ, जिनको अल्लाह ताला नसीब करे, जिनके ऊपर और जिम्मेदारियां कम हो, जैसे बच्चे छोटे या घर पर कोई बीमार या बुजुर्ग या कोई ऐसा जिसकी खिदमत मतलूब हो, तो अगर वो है तो उसकी खिदमत ही इबादत है। लेकिन अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी खास नहीं है तो फिर एतकाफ की तरफ भी तवज्जो। और उसके बाद अगरचे ये रमजान के अहकामात में से नहीं है लेकिन इससे मुल्हक है। मुल्हक का क्या मतलब है? जुड़ा हुआ है। इसके फौरन बाद आया कि अल्लाह के हुक्म से अगर हलाल खाना छोड़ते हो
تو حرام بھی چھوڑ دو، رزق حرام کو چھوڑ کر رزق حلال کے لیے دعائیں بھی، کوشش بھی اور اس کی طرف توجہ بھی۔ اس کے علاوہ مزید جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں احادیث سے وہ ہے کہ صدقہ خیرات، اور اس میں روزہ افطار کرانے سے لے کر اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے میں فراخ دلی کا ثبوت دینے سے لے کر ہمسایوں کی خبرگیری اور پھر نیکی اور خیر کے مختلف کاموں میں حصہ لینے سے لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس موقع پہ یاد رکھنا جہاں جہاں ضرورت ہو، یعنی وہ تمام چیزیں خصوصی طور پر اس مہینے میں توجہ کے قابل ہیں۔ فی الوقت تو یہی چیزیں ذہن میں تھی، اب اس کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ مختلف کام کس طرح کرنا ہے، اور اس میں آپ کو بھی میں شریک کروں گی کہ آپ بھی اپنے اپنے مشورے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کے پاس سحر اور افطار کے اوقات جو ہیں وہ صحیح طور پر ہونے چاہیے تاکہ اوقات کی صحیح پابندی ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا اور ہم عین جب سحری بند ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں، یا تو یہ اس کی تیاریوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اچھی کتاب یا کوئی بھی اچھی کیسٹ اس موضوع پر ضرور ایک دفعہ سن لیں تاکہ پوری چیز کی تیاری یا ذہن آمادہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے طریقے سوچیں۔ ایک تو آپ کا اپنا ناظرہ قرآن پاک ہوگا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیت آئی ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے نا تو اس وقت انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے جو اسے دنیا سے نسبتاً دور اور اللہ تعالیٰ سے نسبتاً قریب کرتی، ہدایت کی طرف سب کا رجحان ہوتا ہے۔ قرآن چونکہ اس مہینے میں اتارا گیا، اس لیے اس مہینے میں قرآن پڑھنا ایک خاص خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو سکھانا ایک خاص قسم کی کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جو قرآن پاک روزے کی حالت میں پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن انسانیت تک اس کتاب کی ہدایت کس وقت جائے گی؟ اسی وقت جائے گی کہ جب قرآن کے جاننے والے اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے کسی بھی طریقے سے، خواہ کتاب دے کر، خواہ پڑھ کے سنا کر، خواہ کسی بھی اور طریقے سے۔ لیکن رمضان کے موقع پر جبکہ دوسرے لوگوں کا بھی رجحان قرآن پاک کی طرف ہوتا ہے تو ان کے قرآن کی محبت کو اصل حکم کی طرف پھیر دیجئے کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اگر آپ کسی اسکول میں جا سکتے ہیں تو اسکول میں، کسی کلب میں، کسی بھی جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں وہاں پر آپ اس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ مل جل کر قرآن پاک پڑھیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مفسر قرآن ہی ہوں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کیجئے، صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ کر سنا دیجئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پڑھ کے سنانے میں دقت ہے تو آپ کیسٹ کے ذریعے بھی مدد لے سکتے ہیں، یا آپ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں اگر ان میں سے اچھی اردو پڑھنے والے ہیں، یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی جیسے تلاوت ایک رکوع کی سنی ہے پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ جیسے ابھی آپ کو سنائی گئی، ایک کیسٹ پلیئر آپ کے پاس ہو، آپ کیا کریں، ناظرہ قرآن پاک کے سیٹس آپ کے پاس کیسٹ کی شکل میں موجود ہوں۔ الحمدللہ یہ ابھی جو قرات آپ نے سنی ہے یہ بھی تیار کرائی گئی ہے، محسنی کا سیٹ تیار ہو چکا ہے، اجمی کا موجود ہے، شاطری کا موجود ہے، تو ان میں سے آپ کوئی بھی ایک لے کر قرآن پاک، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو بٹھا کے انہیں سب کے قرآن پاک کھلوائیں، کیسٹ آن کریں، وہ اپنا انگلی رکھ کے اس کی تلاوت سنیں، جب رکوع ہو جائے کیسٹ بند کر دیں، پھر آپ کیا کریں، اس کا ترجمہ ان کو پڑھ کے سنا دیں، پھر آن کر لیں۔ بے شک اپنے پاس سے ایک لفظ ایڈ نہ کریں، ڈزنٹ میٹر، یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ بہت تفسیر کرنے کے قابل نہیں ہیں، بہت آپ زیادہ بول نہیں سکتے، یا ابھی آپ بہت سی چیزوں پہ گھبراتے ہیں بات کرنے سے، تو سب کو آپ بتائیے کہ میں بھی سن رہی ہوں، آپ بھی سنیے، پھر آن کیجئے، پھر وہ سب سنیں، پھر ترجمہ آپ پڑھ کے سنائیے، پھر اسی طرح۔ اور اگر آپ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ کیا کر، یہ ایک طریقہ بتا رہی ہوں، یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہی ایک طریقہ جو آپ کو فالو کرنا ہے، یہ مختلف آپشنز آپ کو دے رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود عربی اچھی پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ عربی تھوڑی تھوڑی پڑھیں، ساتھ ترجمہ پڑھیں، اور جس طرح رمضان کا پروگرام آپ سنتے رہے ہیں مجھ سے، اس طریقے پر آپ جہاں جہاں مناسب ہو مزید احادیث کوٹ کریں، یا کوئی بات آپ کو جو آپ نے پڑھ رکھی ہو اور جو آپ کے پاس یقینی علم ہو، یعنی اپنی آراء کا بہت اظہار نہ کریں، جو یقینی علم۔ دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر کس طرح ہوتی ہے، نمبر 1 قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک ہی سے، یعنی اس سے ریلیونٹ آیات جو ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن رمضان میں بہت زیادہ ریلیونٹ آیات اس لیے بھی نہیں کوٹ کرتے ہوتے
क्योंकि वो पूरा जो कुरान से गुजरना होता है, तो वो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह वो आयत आ जाएगी। इसलिए दूसरा तरीका तफसीर का क्या होता है कि कुरान पाक की तफसीर हदीस से, यानी जो आयत है उससे मुतल्लिक कोई हदीस जो है आपको मालूम है तो वो आप सुना सकते हैं, वो आप पहले से ही तैयार करके लिखी हुई हो। जैसे पिछले साल मैंने काफी तफसीलन अहादीस कोट की थी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तीसरी बात यह कि क्लास में जो कुछ आप पढ़ते रहे उसमें से अगर कुछ बातें आप रोजाना का सिपारा पहले खुद पढ़ लें, उसमें से कुछ चीजें हाईलाइट किए हुए हों, उनको आप एक पेपर पर नोट कर लें आयत के नंबर के साथ, जहां जहां आए उसमें से वो बातें जो आपके दिल पे असर की, जो आपको अच्छी तरह समझ आई, जो आपकी दुरुस्त हैं, वो आप दूसरों को भी सुना दें। तीसरी बात यह है कि आप कोई भी अच्छी तफसीर, मसलन मुख्तसर तफसीर में ये अहसनुल बयान मुख्तसर है, क्योंकि अगर आप बहुत लंबी तफसीरें पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना वक्त शायद आपके पास ना हो कि आप पूरे सिपारे की सारी तफसीर डिटेल में पढ़ सके और फिर आप आगे पढ़ाने बैठे। और चूंकि रमजान में इतनी लंबी तफसीर का वक्त नहीं होता, लिहाजा जब आपके पास बहुत सा इल्म इकट्ठा हो जाता है फिर उसको डिलीवर करने में आप मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रीफ रहें, प्रिसाइज बात करें और छोटी छोटी चीजें आप उसमें ऐड करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग पहले भी करते रहे हों तो वेल एंड गुड, लेकिन जिन लोगों के पास पहला मौका है जैसे आपकी अक्सरियत का, तो वो इस तरीके पर मुख्तसर सी बातें चुनी हुई छोटे छोटे जुमलों की शक्ल में ऐड कर दें। फिर इसी तरह यह है कि अगर आपके पास बिल्कुल तैयारी करने का वक्त नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप पढ़ सकें, तफसीर पढ़ सकें, या आपने पढ़ तो ली लेकिन आप अभी हिम्मत नहीं पा रहे इतनी देर डिलीवर करने की, या इतनी देर बोल नहीं सकते, या कुछ और वजह है, तो उस सूरत में फहमुल कुरान कैसेट जो है वो भी कैसेट पर लोगों को जमा करके सुना सकते हैं। फिर इसी तरह यह है कि अगर आप समझते हैं कि लोग ऐसे हैं आपके आसपास जिनके पास 2 घंटे बैठने का वक्त नहीं, क्योंकि ये सेशन कम से कम 2 घंटे का हो तो एक सिपारा होता है, इससे कम में नहीं होता। तो अगर आप समझे कि लोगों के पास, मसलन आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर वॉलंटरीली जा रहे हैं और लोगों को इंटरेस्ट है लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, मसलन आधा ही घंटा है, तो आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप हर सिपारे की सिलेक्टेड आयत पढ़ के उनको उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी सुना सकते हैं, और इस तरह हर रोज 30 पारे एक एक करके सुना सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि कुरान पाक की तजवीद की क्लास जो है वो शुरू कर सकते हैं, लोगों को नाजरा पढ़ाना शुरू करें। हो सकता है 1 महीना वो रोज पढ़ते पढ़ते इस काबिल हो जाए कि वो काफी हद तक कुरान पाक ठीक पढ़ सके, और उसके बाद कुछ अहादीस सिलेक्ट कर ले या आयात सिलेक्ट कर ले, उनको आप उस मौके पर साथ सुना दें। चाहे आप बच्चों की तजवीद की क्लास लें, चाहे आप यंगस्टर्स की लें, चाहे आप बूढ़ों की लें, चाहे आप किसी की भी लें, लेकिन कोई मौका स्पेयर न करें कि जहां खैर की कोई बात बताए नहीं, क्योंकि कुरान पाक हुदल लिन्नास है। तजवीद पढ़ना लाजिम है, यानी सही पढ़ना कुरान पाक को जरूरी है, लेकिन खाली वो पढ़ा के फर्ज अदा करना मत समझे, उसके लिए साथ जरूरी है कि कुछ न कुछ, जो जाहिर है कि जब कुरान पढ़ाते हैं तो ये हो नहीं सकता कि अपना दिल ना तड़पना शुरू हो जाए और वो बात जो आपको लग रही है वही आप बात दूसरे को भी कहानी की शक्ल में और किसी न किसी आसान तरीके से दूसरे तक न पहुंचाएं। फिर इसी तरह जो हमने पहले बात की, यानी रात की तरावीह की नमाज जो है, उसमें अगर करीब की कोई मस्जिद हो वहां आप जा सकते हैं, अगर कोई हाफिजा हो तो घर पे इकट्ठा करके आप लोग अपने खानदान वाले या अपने गली मोहल्ले वाले लोग मिलके पढ़ सकते हैं। लेकिन इन रातों में क़याम का बहुत अजर है, और जो कुरान पाक हालत नमाज में, हालत क़याम में पढ़ा जाता है उसका अजर सवाब भी कुछ और है। जिसे वो हदीस में आता है ना, मन क़ाम रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, जिसने रमजान की रातों में क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो हस्बे मौका तरावीह का एहतमाम जो है, और उसमें आसानी हो जाती है अगर चंद लोग मिलकर पढ़े। अगर और कोई नहीं आपके पास, अपने बच्चों को साथ खड़ा कर लें, क्योंकि बाज़ का तो मस्जिद नहीं जाते या कुछ होता है, उनको खड़ा करें या कुछ। और जैसा कि आपको बताया भी गया था कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम जो थे हजरत ज़कवान, वो मुसहफ से भी देखकर पढ़ा करते थे। तो अगर कोई नहीं आपके पास, कोई और दूसरा नहीं, ना कोई हाफिज़, ना मस्जिद, ना कुछ, तो कुल हुवल्लाह पे तरावियां मत पढ़े। उसके लिए क्या करें, मोटे लफ्ज़ों वाला सिपारा पास रख के और अकेले भी खड़े होकर एक एक सिपारा रात को पढ़ लें। और अगर आपके साथ कोई और लोग मौजूद हैं तो हर 2 या 4 रकतों के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसी सिपारे के जो अहम मौज़ूआत हैं उनमें से चंद एक के बारे में बता सकते हैं कि देखें हमने जो सिपारा पढ़ा है इसके अंदर क्या बात आई है। तो इस तरह अगर आप में से हर शख्स सिर्फ 10 लोगों तक भी इस रमजान में
कुरान की तालीम पहुंचाता है तो आप खुद सोचिए कि बात कहाँ तक जा सकती है, और ज्यादा तो आप जितना चाहें इस नूर को बढ़ा लें। फिर इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि हर रोज थोड़े थोड़े जो मसाइल हैं वो भी बयान कर सकते हैं कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। इन चीजों पर भी आप बात कर सकते हैं और कोशिश करें कि इख्तिलाफी मसाइल से बचें और उसमें झगड़े नहीं और उसको बहुत इशू नहीं बनाएं। खास तौर पर हमारे यहाँ जिस मौजू पे बहुत रमजान में झगड़ा होता है वो तरावी की तादाद है। उसमें आप लोगों को उनकी सहूलत पे छोड़ दें, उनका पीछा ना करें कि वो इतनी पढ़े या उतनी पढ़े। ये ऐसी चीजें नहीं हैं कि जिस पर हम आपस में दिल बुरे करें और मुसलमानों की इज्तिमाइयत में खलल आए और एक दूसरे पर हर्फ उठाएं, क्योंकि ये तकवा के खिलाफ है। क्यों कहा गया कि जो कोई रोजे में हो तो उसे क्या करना चाहिए, उससे शोर शराबे और लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए, और अगर कोई उससे लड़ने झगड़ने को आए तो फल यकुल इन्निम्रुउन साइम, कि मैं तो रोजे से हूँ, मैं तो इस पे बहस नहीं कर सकता, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम कर सकते हो। बुनियादी तौर पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो चीज साबित है कि रमजान और गैर रमजान में आप जो थे वो 8 रकत पढ़ते थे, लेकिन ज्यादा नफलों के ऊपर कोई कैद नहीं। अगर कोई 20 पढ़ता है या आप किसी मस्जिद में पढ़ते हैं और वहां 20 में कुरान पाक का सिपारा पूरा हो तो सिपारे को पूरा कीजिए, और उसमें 20 पढ़ने में हर्ज नहीं है, उसको 20 तक पढ़ जाइए। यानी ये ऐसी चीजों में से नहीं है कि जो हराम हलाल के दायरे में आती हैं या नौजुबिल्लाह किसी बिदत और उसमें आती हैं। इसमें बुनियादी तौर पर बात यह है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि बाज लोगों के नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 ही थी, और अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहे तो उस पर कोई एतराज नहीं है। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में हैं कि जहां पर 8 पढ़ रहे हैं और सिपारा वहां मुकम्मल हो गया है, तो उसमें आप ये ना समझे कि हम गुनाहगार हो रहे हैं। उनमें क्या होता है कि क़याम लंबा हो जाता है। फिर इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मौजू पर कोई बहुत इख्तिलाफी राय पाई जाती हो रमजान और रोजे के अहकाम से मुतल्लिक, इसलिए बाकी चीजों में इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी अहकाम बताते हुए। और वैसे भी आप पढ़ के ही सुनाएंगे, अपने पास से तो फतवे नहीं देंगे। फिर इसके बाद दुआएं जो हैं, कोशिश करें कि लोगों के अंदर मसनून दुआओं का रवाज हो, क्योंकि दुआ हर इंसान की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ गैर मसनून तरीके बहुत राइज हो गए हैं। तो उसकी वजह से बसा औकात ऐसी दुआएं भी आ जाती हैं कि जिनमें जो मफहूम जो है वो इतना दुरुस्त नहीं होता, या उसमें कुछ ऐसे अल्फाज शामिल कर दिए जाते हैं बसा औकात जो शिर्क की हद तक पहुंचते हैं। तो जब आप मसनून चीजों को इंशाल्लाह रवाज देंगे तो वो चीजें बगैर किसी झगड़े के खुद ब खुद खत्म होती जाएंगी, और खुद अपनी भी दुआ करे तो। अच्छा, एक और चीज, आप अपनी क्लासेस में जैसे अगर सिखाना हो तो इज्तिमाई तौर पर ऊंची आवाज में दुआ पढ़वाएं, लेकिन जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी खामोश भी पढ़ें, क्योंकि सिर्फ राग लगा के दुआ पढ़ने से बाज़-औक़ात नुकसान ये होता है कि दूसरे लोग पढ़ रहे होते हैं और हमारी पूरी तवज्जो कोई नहीं होती उस पर। हम कोई बीच में से आधा जुमला इधर पढ़ लिया, आधा आखिर में पढ़ लिया, बीच में सांस लेते रहे, और इस तरह वो दुआ का जो पूरा अदब है वो नहीं रहता। सहाबा कराम हमें कोई इस तरह मिल के इकट्ठे दुआ नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए इसको मुस्तकिल तौर पर रवाज देना फिर बिदअत ही ना हो जाए, या हम कोई ऐसी रस्म ना शुरू कर दें कि जो दीन में एक नया इजाफा हो। तो इसलिए तालीम के लिए, सीखने के लिए मिलकर पढ़ने में हरज नहीं है, लेकिन इसे लाजिम समझना और फर्ज समझना ये दुरुस्त नहीं है। कभी कभी यानी आप जब सीख जाए लोग तो फिर क्या करना शुरू कर दें कि दिल में पढ़े, ताकि यकसुई और तवज्जो ज्यादा हो। जैसे कि पहले भी बात हुई कि असल जो हदफ है और गोल है रोजे का वो क्या है, तकवा। तकवा 2 चीजों का नाम है, एक अल्लाह के खौफ और दूसरे अल्लाह की मोहब्बत, यानी अल्लाह ताला का एहसास होना दिल में। ये पैदा उस वक्त होता है जब आप उन सारी चीजों को छोड़ेंगे जो अल्लाह ताला ने मना की है, यानी हराम, नाजायज, नापसंदीदा उमूर को छोड़ना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा ताअमहु व शराबहु। जिसने रोजा रख कर झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई जरूरत नहीं कि वो शख्स भूखा या प्यासा रहे। और खुसूसी तौर पर जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है वो जबान की एहतियात है। हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना हमारे मुंह के अंदर है, और वो हमारी जबान है। बसा औकात हम अपनी जबान से ऐसी बातें निकालते हैं जो हमारे सारे अमाल को बर्बाद कर सकती। इसलिए बी केयरफुल। सबसे ज्यादा जिस चीज की प्रैक्टिस की जरूरत है वो क्या है, जबान की हिफाजत, इसको लगाम देना, इसको कंट्रोल करना। पहले जमाने में तो चुप का रोजा होता था, अब वो नहीं रहा, लेकिन हमें चुप तो नहीं रहना मगर गलत चीजों से परहेज करना है।
और उसमें खास तौर पर किसी को दुख देने वाली बात ना हो। बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है, लेकिन सिर्फ याद दहानी के तौर पे कोई इंसान भूलता रहता है। कहीं बदतमीजी की टोन ना हो, कहीं रूडनेस ना हो, कहीं शाउट करना ना हो, कहीं किसी को ताना देना ना हो, किसी के एहतराम में कमी ना हो। इन सारे उमूर का ख्याल रखना है। बहुत सी चीजें आप अपने रवैये और अपने अमल से दूसरों को सिखा सकते हैं, और खुसूसन अपने से छोटों के साथ, जैसे बच्चे हैं, सर्वेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। जिसको बच्चों का और अपने सर्वेंट्स का एहतराम करना आ गया वो कामयाब हो गया, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ वो हमें जवाबन पकड़ नहीं सकते बेचारे ज्यादा, या मौका हमें मिल जाता है कुछ ना कुछ मनमानी करने का। फिर इसके बाद सदका खैरात। सदका खैरात जो है ये इंसान के गुनाहों का कफारा है। ठीक है, रमजान में 1 दिरहम या 1 रुपया जो है वो 70 के बराबर है। सदका खैरात में 2-3 चीजें आप कर सकते हैं। एक तो है खाना खिलाना। कोशिश कीजिए कि आसपास के वो लोग, वो बस्तियां, वो इलाके जहाँ पर लोगों को वो सब कुछ मयस्सर नहीं जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, तो उसमें उन तक खाना पहुंचाएं। और एक चीज जो आमतौर पर हम देखते हैं या कर जाते हैं कि खुद तो कुछ खाते हैं मगर गरीबों को खिलाते वक्त एकदम बिल्कुल ऐसा खाना खिलाते हैं जैसे उनको इंसान ही नहीं समझते या जानवर समझते। तो इस मेयार का जरूर ख्याल रखें कि खाना वो हो जो दूसरों के लिए भी खाने के काबिल हो। बसा औकात हम पका पकाया खाना भिजवाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर या मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसमें भी इस पहलू का ख्याल जरूर रहे कि वो लुकमा आप खुद कितनी खुशी से खा सकते हैं जो हम दूसरों को सवाब और अल्लाह की खुशी के लिए खिला रहे हैं। क्योंकि कुरान पाक में क्या आता है खाना खिलाने के बारे में, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में। तो जो काम अल्लाह की मोहब्बत में किया जा रहा है उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। फिर इसी तरह यह है कि खाना खिलाने के अलावा कपड़ा पहनाना, और खुसूसन ईद के मौके पर आप इसके बारे में देख सकते हैं कि जिन लोगों को कपड़ा मयसर नहीं वहाँ उसका एहतमाम करना। यानी आप यूँ कर सकते हैं कि जो अपने सदकात हैं उनको कुछ तकसीम कर लीजिए। कुछ अपने आसपास के लोगों को, ये ना हो कि हम दूसरी तरफ करते करते अपने जो हमसाए हैं हमारे वो भूखे हों, या हमारे जो गरीब अवाम है वो तरसते तड़पते रहें कि उनको जो रमजान में जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता था वो सारा उनका हक जो है वो मारा जाए। तो बुनियादी तौर पर जो सदकात होते हैं किसी भी इलाके के, वो उन्हीं के गुरबा पे जाते हैं। हाँ, उसके अलावा भी अगर कहीं और जरूरत है तो भेजे जा सकते हैं, मगर अपने इलाके के जरूरतमंद लोगों को, अपने शहर के, अपने मुल्क के, उनको भी आप फरामोश नहीं करेंगे। क्योंकि बसा औकात हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, एक तरफ काम करने लगते हैं तो दूसरी तरफ बिल्कुल हम बंद कर देते हैं कि नहीं अब ये तो गोया जरूरत ही नहीं रही। फिर इसी तरह यह है कि सदका जारिया के कामों में, दीन को फैलाने के, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे पैम्फलेट्स हैं जो रमजान के मौजू पर हैं, वो इंशाल्लाह ताला यहाँ अवेलेबल किए जाएंगे, उनको आप दूसरों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। इसी तरह जो लोग न तो किसी क्लास में आ सकते हैं, ना ही कोई दर्स अटेंड कर सकते हैं, ना आप उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मसलन ट्रैवलिंग करते हैं या कुछ और, तो आप उनको कैसेट्स की शक्ल में गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और कुछ और कैसेट्स जो अभी आई हैं उसमें खुशगवार बाहमी ताल्लुकात, जो आपको याद होगा डिस्कशन थी सूरत अल-हुजरात में, गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़ वगैरह पर काफी तफसील में ये कैसेट रिलीज हो चुकी है। क्योंकि रोजा रख कर भी बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो आपस में गीबत वगैरह और इस तरह की चीजें नहीं छोड़ते, तो इन अहकामात को आम करने की माशरे में जरूरत है कि जिसकी वजह से हमारे माशरे का सुकून बर्बाद है। इसी तरह दोस्ती के मौजू पर, और इसी तरह इंसान अल्लाह का मोहताज है। ये कैसेट खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ आना ही नहीं चाहते, तवज्जो ही नहीं देना चाहते, यानी बहुत दूर हैं, उनको अपनी जिंदगी में जरूरत महसूस नहीं होती, तो उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अल्लाह के मोहताज हैं, आपको जरूरत है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करें। इसी तरह तहारत पर भी कैसेट्स रिलीज हो चुकी हैं, हज और उम्रा की भी हो चुकी हैं। आयतुल कुर्सी पहले इस तरह रिलीज की गई थी कि सिर्फ आयतुल कुर्सी थी, लेकिन अब उसकी दूसरी तरफ आयतुल कुर्सी का तर्जुमा और तफसीर भी मौजूद है। कारी मुहस्सिनी की किरात है, दुरूद शरीफ पर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। फिर इसी तरह तालीमुल कुरान जो आपकी क्लास के कैसेट्स थी वो 124 पारे हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला रमजान में उम्मीद है कि ये मुकम्मल हो जाएगा सेट। फिर इस तरह कारी शातरी और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, ये जो सूरत फतह में थी ना आयात, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमाओ बैनहुम वाली, ये भी आपस के बाहमी ताल्लुकात के लिए एक अच्छी याद दहानी है। फिर इसी तरह घर टूटने न पाए, ये भी कैसेट जो है घरों की, यानी शौहर बीवी और जो घर वालों के ताल्लुकात की बाहम इस्लाह की बातें हैं उनकी याद दहानी है
ٹھیک ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈیورس کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بسا اوقات یہ دلوں کی تنگی اور آپس کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کلیشز کا بڑھ کر بہت بڑا بن جانا، اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہم بسا اوقات کریں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، اور دنیا کا بھی سکون لٹ جاتا ہے۔ پھر گھر والوں کو آگ سے بچائیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پھر یہ کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں، یہ خاص طور پر رمضان میں آپ کر سکتے ہیں۔ حج اور قربانی کے مسائل، رسول اللہ کا حج وہ جو ایک کہانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی، پھر اللہ کے مددگار بنو، پھر کتاب الفتن جو بخاری کی ہم نے کی اس کو بھی ریلیز کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ یہاں رابطہ رکھا کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم ویسے ایک کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اپڈیٹ کر دیا کریں جو بھی نئی چیزیں آئی ہیں، تو اگر آپ کبھی کبھی کمپیوٹر پہ کھول کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں کہ اور کیا آ چکا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر فرحت